Welcome to the lecture on gravitation numericals. Now, numericals have always been a little difficult when it comes to physics, but if you have a list of formulas in front of you, then it is not difficult. So, I have prepared the list of formulas from the gravitation chapter, and we will discuss them one by one. Have a look at them, whether they are new, they are old, you know them, you don't know them, etc. The first formula, force, is G m1 m2 upon d square. Universal law of gravitation tells you that any two objects attract each other, whether they are small objects like a mouse and a pen, or whether they are huge objects like sun, moon, and the earth. They all attract each other, and this attractive force is called the gravitational force. And the formula of gravitational force is F is equal to G m1 m2 upon d square. Capital G is universal constant जिसकी वैल्यू आगे आएगी. m1 m2 are masses of the two objects and d square is distance square. F is equal to ma comes from Newton's law. A is equal to v minus u by t is acceleration का फॉर्मूला फ्रॉम 8th चैप्टर मोशन. जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11. यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर. स्मॉल जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फॉर्मूला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अर्थ. मून का स्मॉल जी अलग है, जुपिटर का अलग है, सन का अलग है. दे ऑल हैव देयर ओन जीज डिपेंडिंग ऑन देयर मास एंड डिस्टेंस. सो स्मॉल जी ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन देर आर थ्री फॉर्मूलाज ऑफ मोशन which we learned in 8th chapter. The three formulas are v is equal to u plus at, v square minus u square is 2as, and s is ut plus half at square. But these three formulas change when there is a case of free fall or there is a case where you throw up. ऊपर फेंको या नीचे गिराओ तो फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं, जो थर्ड या सेकेंड लेक्चर में डिटेल में समझाया था. एंड दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज. द ओनली डिफरेंस इज एक में u0 लेना है, दूसरे में v0. प्लस a acceleration becomes small g acceleration due to gravity, and s displacement या distance becomes h the height. तो सिंबल्स बदलने और u0 v0 करोगे तो फॉर्मूलाज मिल जाते हैं. देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का लास्ट टॉपिक शुरू होता है, where density is mass upon volume. Relative density is density of the substance upon density of water. और रिलेटिव डेंसिटी का आंसर अगर एक से कम है तो वो फ्लोट करेगा चीज, एक से ज्यादा है तो सिंक करेगा. Then there is also a small topic of thrust which is also called force, and weight is a type of force, and W is equal to mg. And pressure is thrust upon area, मतलब force upon area, मतलब weight upon area या mg upon a. gm is equal to 1/6 of ge का मतलब है the gravitational acceleration on moon is 1/6 of the gravitation acceleration on earth. Means 1/6 of 9.8 means 1.6, the small g value. So this is the small list containing 15 things. अगर ये 15 चीज तुम्हारे दिमाग में है तो सारे न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे. So let's now look at textual numericals one by one. The first example is 10.1. The mass of the earth is, तो ये बाय हार्ट कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए. मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 into 10⁻24 kilograms, and that of the moon is mass of moon 7.4 into 10⁻22 kilograms. If the distance between earth and moon is d 3.84 into 10⁻5 kilometer,
बट डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं लेना है, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, तो 3 जीरोस बढ़ जाएंगे, 5 बिकम्स 8 एंड द फाइनल नंबर गिवन इज कैपिटल G, जो बाय हार्ट होना चाहिए 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. All the information is given. We have to find out the force exerted by earth on moon. The law says the force exerted by earth on moon is equal to the force exerted by moon on earth. तो कोई भी पूछे F तो F ही रहेगा, and the formula is G m1 m2 upon d square. G 6.7 into 10⁻⁻11, m1 मतलब mass of earth 6 into 10⁻22, mass of moon 7.4 into 10⁻22, ओके ये 24 है, divided by distance 3.84 into 10⁻8 का square. These calculations cannot be done manually within a short period of time. It can be done manually, but बहुत time जाता है. So I recommend टेक्स्ट बुक के हर एक न्यूमेरिकल का आंसर बाय हार्ट कर लो. फाइनल आंसर इज 2.01 into 10⁻20 newtons. This is the amount of force which the earth exerts on the moon or the moon exerts on the earth. Example 10.2. A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. Car falls off the ledge, और car falls मतलब फ्री फॉल. ये फ्री फॉल का केस है. तो फ्री फॉल के 3 फॉर्मूलाज एक्टिव हो जाते हैं. फ्री फॉल के 3 फॉर्मूलाज is this. So a car falls off the ledge and drops to the ground in half a second. So t 0.5 second. Let g is equal to 10 meter per second square. Small g वैसे 9.8 होता है, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने बोला इसलिए हम 10 लेंगे. ये रहा. What is the speed on striking the ground? फाइनल वेलोसिटी कार की क्या होगी जब वो ग्राउंड को टच करेगा. व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग हाफ अ सेकेंड? एवरेज v. एंड हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड? हाउ हाई मतलब हाइट. फ्री फॉल का उसूल है u इज इक्वल टू 0, जो कोई नहीं बताएगा, ये लिखा हुआ है. तो u भी जोड़ दो लिस्ट में. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट v. v इज इक्वल टू gt. कितना सिंपल फॉर्मूला है. द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू टाइम. फाइनल आंसर 5 मीटर पर सेकेंड. पहला हो गया. अब h फाइंड करना है. हाफ gt स्क्वायर. h इज इक्वल टू हाफ g t और 2 बार t बिकॉज t स्क्वायर है. हाफ इंटू 10 इज 5. 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25 विच इज 5 इंटू 25 125 अपॉन 100. It falls from 1.25 meters. And the last question is average speed. अब एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज होता है. एवरेज स्पीड, total distance is the height,
अपॉन टोटल टाइम, 1.25 मीटर से कार गिरी, टोटल टाइम लगा हाफ सेकेंड, विच इज 125 अपॉन 50, 2.5 मीटर पर सेकेंड, सम ओवर। तो फॉर्मूलाज होना एक बहुत पावरफुल चीज़ है। फॉर्मूला की वजह से सारे आंसर्स आ जाते हैं। 5, 1.25 एंड 2.5, 5, 1.25 and 2.5. Don't look at what the textbook has done because sometimes textbook have a habit of complexing the things. तो मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखो, वो इजी पड़ेगा। बाकी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्यूशन है, आंसर सेम है और मेथड दोनों करेक्ट है। An object is thrown vertically upwards. Vertically upwards मतलब फ्री फॉल का एग्जैक्ट ऑपोजिट, thrown up. So the formula of throw up, these three formulas have to be in front of you. An object is thrown vertically up and rises to a height of 10 meters. कितना हाइट? 10 मीटर जब तुम फेंकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स। किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया था, यू फाइंड करना है। एंड v इज इक्वल टू 0 कोई नहीं बताएगा, वो तुम्हें बाय हार्ट होना चाहिए। थ्रो अप के लिए v इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। जब ऊपर फेंका तो सबसे ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा था। सो HUVT और g की जो वैल्यू है दैट विल टेक इट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर इजी कैलकुलेशंस। टेक्स्ट बुक ने 9.8 लिया है तो फिर हम भी 9.8 लेंगे। So G is equal to, you cannot take 10 yourself. If textbook tells you to take 10, then take, otherwise 9.8. तो U is equal to GT नहीं, U square is 2GH. U square is 2GH, formula 2GH. U square is equal to 196. U is equal to 14 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली जब फेंका तो 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको फेंका था। तो U मिल गया 14। अब T फाइंड करना है। U इज इक्वल टू GT। फर्स्ट फॉर्मूला U 14, G 9.8, T. So 14 upon 9.8 is T. 7 2s are 7, 1.4 means 1 upon 0.7 means 10 upon 7 means 1.42 seconds। टाइम ढूंढ रहे थे। So initial velocity 14 and time taken to reach the highest point is 1.42 seconds. यहाँ पे देखो 1.43 and 14 is the answer. Again, if you look at textbook ने 9.8 की जगह -9.8 लिया है। क्यों? I'll tell you the reason. Because they are not using special formulas. They are using v square is equal to u square plus 2as, जो एक्चुअली तो तुम्हारे डेटाबेस में ही नहीं है। लेसन 8 में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये सीखा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो तुमने बाय हार्ट किए। उसको अननेसेसरी मॉडिफाई किया टेक्स्ट बुक ने, v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर उसमें g की a की जगह g लिया और g -9.8 लिया।
क्यों -9.8 लिया? इट्स अ रूल that when you're throwing something upward, g becomes negative. When something is falling down, g is positive. बट हमने तो g चेंज ही नहीं किया था. उसका एक रीज़न है दैट व्हेन वी वर मेकिंग दीज फार्मूलाज, जब ये फार्मूलाज 3 स्पेशल फार्मूलाज बना रहे थे, तब हमने नेगेटिविटी कंसिडर कर ली थी. तो फार्मूला के अंदर नेगेटिविटी हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड थ्रू अप सिचुएशन की. देयरफॉर यू डोंट नीड टू टेक -9.8, यू जस्ट टेक 9.8. Mass of the object is 10 kg. What is the weight on earth? W is equal to mg. Mass 10 kg. Small g 9.8 meter per second square. मतलब 98 kg meter per second square. मतलब 98 Newton. The weight of the object on earth is 98 Newton. Sum over. ये रहा. An object weighs 10 Newton. Weight of the object 10 Newton. When measured on the surface of the earth. What would be its weight when measured on the surface of the moon? तो weight on earth 10 Newton है. तो वेट ऑन मून कितना? मास एक कांस्टेंट चीज है, तो पहले वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ इंटू जी. डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. 10 इज इक्वल टू, so mass on earth is 10 upon 9.8. which is 100 upon 98, which is 50 upon 49, and then you stop. क्योंकि मास ऑन अर्थ पूछा ही नहीं है, तो मैं इसको फाइनल सॉल्व नहीं करूंगा. अब वेट ऑन मून also has same formula. Weight on moon is equal to mass on moon multiplied by g of moon. ये small g था, वो था अर्थ का 9.8. अब नंबर लगा मून का, so w is equal to mg for moon. wm तो ढूंढना है. Mass on moon and mass on earth is same, therefore mass on earth 50 upon 49. Mass on moon is also equal 50 upon 49. एंड ग्रेविटी इन मून 1.6 बाय हार्ट कर लो, इज इक्वल टू 16 फाइजा 80 और डेट और जीरो जा एंड 49. इसका कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा. 80 अपॉन 49 1.63 न्यूटन. सो W इज इक्वल टू एम जी करके मास मिला, वो मास मून पे भी वैलिड है. W इज इक्वल टू एम जी करके वेट मिल गया. बट वॉट हैज टेक्स्ट बुक डन? टेक्स्ट बुक हैज डन अ शॉर्टकट मेथड, इसलिए उनका आंसर भी अलग है. 1.63 की जगह पे 1.67. वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग अ स्ट्रेट फॉर्मूला. वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ. और ऐसा दूसरा फॉर्मूला है, जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ. तो वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, मतलब 1/6 ऑफ 10, एंड 10 अपॉन 6 1.6666, मतलब 1.67. So this is the shortcut method, and what I showed you here was the long cut method. दोनों सेम है, दोनों वैलिड है, और दोनों में आंसर अलग आएंगे, बट इट इज ऑल राइट. A block of wood is kept on a tabletop.
The mass of the wooden block is 5 kg and dimensions are this. Find the pressure exerted. Mass of the wooden block is 5 kg. मैं 2 बार लिख रहा हूं क्योंकि 2 केसेस हैं. This block is kept on the table. We have to find pressure exerted. अब प्रेशर फाइंड करने के लिए फोर्स अपॉन एरिया इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. बट फोर्स मतलब वेट, तो वेट अपॉन एरिया. बट W इज इक्वल टू mg, तो mg अपॉन एरिया. तो पहले केस में जहां पे 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बेस बन के बैठा है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर में. एंड मास इज 5 kg और G 9.8 है. 5 4 20, 98 अपॉन 4 और 2 zeros, 49 अपॉन 200 और 2 से कट करो तो 24.5 अपॉन 100, 0.245. बट यहाँ पे हमने एक मेजर मिस्टेक किया और वो मिस्टेक से बचना है तो एरिया को अलग फाइंड करो. So what I did is perfect, but 0.245 is misguiding and incorrect. अब वापस लिखते हैं. Don't cut anything. Learn. कुछ कट करने की जरूरत नहीं है. ये कैलकुलेशन मिसगाइडिंग है. एरिया शुड बी इन मीटर स्क्वायर, बट हमने क्या किया 20 इंटू 100, तो वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. तो 20 सेंटीमीटर इज 0.2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर. अब आंसर करेक्ट आएगा. सो 5 इंटू 98 अपॉन 10, तो 98 9.8 का 98 अपॉन 10 और नीचे 0.2 मतलब 2 ऊपर 10 और 0.1 मतलब 1 और ऊपर 10. 0 0 कट एंड 2 5 तो 5 5 25 एंड 25 इंटू 98 2450 Pascal is the pressure on the table because this block is kept. आंसर चेक करते हैं. 2450 करेक्ट, ये रहा. बट अगर ये ब्लॉक को सुला दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा एरिया में. 10 by 40 centimeter. So the area in contact has increased, therefore the pressure will reduce. 10 centimeter by 40 centimeter का एरिया है, 5 kg का ब्लॉक है. So pressure is equal to force upon area. Force is a kind of weight. W is equal to mg. तो mg अपॉन a में मास 5 kg, g 9.8, एरिया 10 by 40, बट वो सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर बाय 0.4 मीटर. 5 98 अपॉन 10, 0.1 10 by 1 and 0.4 10 by 4. 10 10 कट, 50 इंटू 98 अपॉन 4 मतलब 25 इंटू 49. 2450 की जगह 1225 पास्कल.
यहाँ पे आंसर मैच नहीं हो रहा है, उसका एक रीज़न है, देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। रेड वाले केस में फिगर देख के बेस 10/40 होना चाहिए, बट वो लोग ने रेड वाले केस में 20/40 लिया। So you should know that there is a mistake in the question and the answer, but method समझो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। The method is very simple, force is equal to, अरे pressure is equal to force divided by area करके करना है, and area should be in meter square, then your answer will match। देखो वो लोग ने अलग से एरिया फाइंड किया है टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट टाइम 20/10 विच इज करेक्ट, बट सेकेंड टाइम 40/10 होना चाहिए फिगर के हिसाब से, वो लोग ने 40/20 किया। मे बी सम ऑफ यू वुड हैव द करेक्टेड टेक्स्ट बुक, तो तुमको ये मिस्टेक दिखेगी नहीं, बट ऑनलाइन टेक्स्ट बुक में यही हाल है। Relative density of silver is 10.8. Relative density of silver 10.8. Density of water is 10⁻³ kg per meter cube. What is the density of silver? डेंसिटी ऑफ सिल्वर, वेरी इजी सा। ये तीनों एक सिंगल फॉर्मूला में वीव किए हुए हैं, एंड दैट सिंगल फॉर्मूला इज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर पहले ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब 10.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन 10⁻³ और 10⁻³ सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा 10800 kg per meter cube is the final answer, density of silver। Sum over। So relative density is density of object upon density of water, ये रहा। But look at the difference in their answer and my answer। उनका आंसर है 10.8 इंटू 10⁻³ और मेरा आंसर है 10800। दे बोथ आर सेम थिंग। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10800 आंसर आया तो कैन आई राइट 10800.00, सेम ही है। अब डेसिमल को शिफ्ट करो, 1 2 3 4, तो हो गया 1.0800 इंटू 10⁻⁴। बट अगर 10800 विच इज द करेक्ट आंसर मीन्स 10800.00, तो 30 हो या 30.0 सेम ही होता है, वैसे ये भी सेम है। डेसिमल को 3 बार शिफ्ट करो, 1 2 3, तो आएगा 10.8 इंटू 10⁻⁴। ये सारे नंबर्स का मतलब सेम है, 1.08 इंटू 10⁻⁴, 10.8 into 10⁻⁴, 10800, all are same numbers. And this is from a chapter called Logarithm, which has been completely omitted from your syllabus till 10th. एक चैप्टर था, अच्छा था, वो पूरा निकाल दिया, इसलिए अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का सम करते हैं। What is the magnitude of gravitational force F between Earth, मतलब mass of Earth चाहिए,
and a 1 kg object, mass of object और डिस्टेंस चाहिए और g चाहिए. g is 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So F is equal to g, mass of earth, mass of object, distance between them. g 6.7 into 10 raised to minus 11. Mass of earth 6 into 10 raised to 24. Mass of object 1 kg divided by distance का square. But distance नहीं दिया है. You have to use the radius of the earth. 6.4 into 10 raised to 6. और ये सारे का मिला जुला कैलकुलेशन you have to by heart the answer. And what is the answer? I am calculating it right now, but you will not spend time during exam, वरना पेपर छूट जाएगा. कैसे करते हैं? सारे नंबर्स को एक साथ ले आओ. 6.7, 6 and 6.4 और सारे 10 raised to को साथ में ले आओ. सिक्स 6.7 into 6 मतलब 67 into 6 और 64. ऊपर नीचे डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं. एक डेसिमल वो नलीफाई हो गया. 10 raised to minus 11 plus 24 minus 6 सारे पावर्स मर्ज हो गए. 6 को 2 से कट करो. 2 3 जा 2 32 जा. 3 into 67 191. 24 minus 17 10 raised to 7. और ये फाइनल डिवीजन तुम्हें खुद करना पड़ेगा. 191 अपॉन 32 5.968 into 10 raised to 7 Newton, and that's your final answer. What is the force between Earth and a 1 kg object? It is 5.968 into 10 raised to 7. लेकिन कहीं कहीं पे 5.968 में 8 को इग्नोर करो. बट इफ यू आर इग्नोरिंग अ वैल्यू विच इज 5 और मोर, 5 या 5 से ज्यादा का नंबर अगर इग्नोर कर रहे हो तो आगे 1 ऐड करना पड़ता है. 5.97 आएगा इंटू 10 raised to 7 Newton. This is the force between Earth and a 1 kg object. One mistake. बुरे फॉर्मूला में d स्क्वायर आता है, which means 6.4 दो बार आएगा, which means everything will change. That's why I am telling you again and again, टेक्स्ट बुक के हर एक सम का आंसर बाय हार्ट कर लो. और इस बार 9.8 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस सम. कि पृथ्वी 1 किलो की चीज के ऊपर कितना फोर्स अट्रैक्ट करती है. तो ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, बाय हार्ट कर लो. आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा दैट हाउ मच इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg. 9.8 न्यूटन. Gravitational force on the surface of moon is 1/6 as strong as gravitational force on earth. G moon is 1/6 of G on earth. Weight on moon is 1/6 of weight on earth. ये दो formulas by heart होने चाहिए. What is the weight in the newtons of a 10 kg object on moon and earth? तो 10 किलो के ऑब्जेक्ट का वजन क्या है? तो वेट ऑन अर्थ
is mass on earth into g on earth. W is equal to mg. M 10 kg, g 9.8, final answer 98 न्यूटन. बट मून के ऊपर वेट ऑन मून इज मास ऑन मून इंटू जी ऑन मून. मास तो चेंज होगा नहीं एंड जी ऑन मून इज 1.6. देयरफॉर आंसर इज 16 न्यूटन. और यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक थी. 10 इंटू 9.8 इज 98 न्यूटन्स. सो 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का weight on earth is 98 and weight on moon is 16 newtons. A ball is thrown vertically upwards. तो vertically upwards के सारे formulas आने चाहिए. This is it. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. So initial velocity 49 meter per second. Calculate maximum height to which it rises and find the total time to return to the surface of the earth. तो UHT और G तो फिक्स है 9.8. 8th चैप्टर मोशन के फॉर्मूलाज यूज करोगे तो G माइनस लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज थ्रोन अप. बट मेरे स्पेशल फॉर्मूलाज यूज करोगे विच आर डिजाइन फॉर थ्रो अप तो G 9.8 लेने का. अब हाइट फाइंड करने के लिए U स्क्वायर इज 2GH. U स्क्वायर इज 2GH. तो 49 इंटू 49 अपॉन 2 और 9.8 का 98 और ऊपर 10 चला जाएगा इज इक्वल टू h. Do the calculation, it's very easy. 49 1 49 2 2. ओके नहीं कट करते. 490 अपॉन 4. 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8. 122.5 meter is the maximum height where it will reach. What is the time taken to return to the earth? U is equal to GT. U is equal to GT. U 49, G 9.8. तो 49 अपॉन 9.8 मतलब 1 अपॉन 0.2. 10/2 आंसर 5 सेकेंड्स. सॉरी वापस एक बार देख लो. U इज इक्वल टू GT. U 49 गिवन, G 9.8 गिवन. फिर तो कैलकुलेशन है. इट विल टेक 5 सेकेंड्स फॉर इट. बट ये 5 सेकेंड गलत है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. और रिटर्न जर्नी मतलब टोटल टाइम टेकन विल बी 10 सेकेंड्स. 5 सेकेंड जाने का और 5 सेकेंड वापस आने का. सो फाइनल आंसर इज 10 सेकेंड्स. A stone is released from the top of a tower of height 19.6. This is called free fall. जब तुम किसी चीज को फेंकते हो तो फ्री फॉल के फॉर्मूलाज एक्टिव हो जाते हैं. So these are the formulas. Height is given 19.6 meter. Calculate final velocity. Okay. Initial velocity तो zero है, वो तो पता होना चाहिए when you are falling things down and just before touching. हो गया. तो H, U और V और G तो 9.8 है ही. तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH फॉर्मूला फिट बैठता है.
V square is equal to 2 GH. 2 into 9.8, तो 2 into 9.8 is 19.6. So V square is equal to 19.6 into 19.6, which is 19.6 square. V is equal to 19.6. This is very smart calculation. Learn this, वरना बहुत पछताओगे. कोई भी दूसरी मेथड की तो सम लंबा हो जाएगा, आंसर यही आएगा, बट इट विल बी वेरी लॉन्ग. So just multiply 2 19.6 दो बार. V is 19.6 meter per second. That's all. A stone is thrown vertically upward. तो अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग यू फॉर्मूलाज, तो धीरे धीरे याद रह जाएंगे. वर्टिकली ऊपर किसी चीज को फेंकते हो तो ये फॉर्मूलाज लागू होते हैं. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है क्योंकि वो ऊपर जाके एक माइक्रो सेकेंड स्टॉप हो जाता है. एंड जी क्वेश्चन में लिखा है 10 लेना है. ओके, वेरी गुड. फाइंड मैक्सिमम हाइट h and the distance, बस maximum height reached by the stone. Okay, and what is the net displacement and total distance covered? Net displacement and total distance covered. Stone is thrown upward. बस पत्थर को ऊपर फेंका, तो पहले h फाइंड करने की कोशिश करते हैं. हैव अ लुक एट द फॉर्मूलाज. कौन सा सबसे इजीली बैठता है? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. 40 square 1600 upon 20 is h. 0 0 cut. 80 meter is the answer. जब नीचे से पत्थर को ऊपर फेंका और ऊपर जाके फिर वो वापस नीचे गिरेगा और जर्नी खत्म. 80 मीटर ऊपर जाने का, 80 मीटर नीचे आने का, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 160 मीटर. लॉजिक. पत्थर फेंका, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन? तो हवा में हैंग तो नहीं करने वाला, मतलब ऊपर जाके गिरेगा ही, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 160. एंड नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0. 8 चैप्टर में सीखा था कि अगर कोई चीज जमीन से जर्नी शुरू करके घूम फिर के वापस जमीन पे आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो हाइट के लिए फॉर्मूला चाहिए और बाकी दो के लिए फिजिक्स की समझ चाहिए. नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. F is equal to G m1 m2 upon d square. 6.7 into 10 raised to minus 11. G की वैल्यू डाल दी. We have to calculate force between earth and sun. तो earth का मास अब तक बाय हार्ट होगा 6 into 10 raised to 24 and mass of sun 2 into 10 raised to 30. And distance between the two 1.5 into 10 raised to 11 meter is also given ka square. Now again I am telling you, don't dare to actually calculate by heart the answer. The answers are given at the back of the textbook. You can download them from NCERT website, but don't calculate, वरना टाइम भी बर्बाद होगा और एक सिली मिस्टेक की वजह से आंसर गलत हो जाएगा. Final answer is 3.56
into 10 raised to 22 Newton. This is the force of gravitation between Earth and Sun. Please by heart it. A stone is allowed to fall from top of a 100-meter high tower. तो 100-मीटर हाई टावर से स्टोन को फेंक दिया, मतलब फ्री फॉल. फॉर्मूलाज ऑफ फ्री फॉल. रेडी. A stone is allowed to fall from a top of a tower 100-meter high. Height 100 meter. And at the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25. ये यूनिक क्वेश्चन है. एक को ऊपर से छोड़ दिया और दूसरे को नीचे से फेंका एट द सेम टाइम. ओके, लेट्स create a small figure. This is the ball which is released downwards, and this is the ball which is thrown upwards at the same time. Upward ball का initial velocity 25 और final velocity 0, क्योंकि उसको नीचे से फेंका है. ऊपर से फेंकने वाले बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी पता नहीं. बट क्वेश्चन ये है, वेयर विल द टू स्टोन्स मीट. ये दोनों स्टोन कहाँ मिलेंगे. Say this is the tower. टावर के ऊपर से किसी ने हाथ लंबे करके एक बॉल को फेंका और वो बॉल लगभग यहां आया था, तब वो लाल बॉल से मिलता है, क्योंकि लाल बॉल को किसी ने नीचे से ऊपर फेंका था. लाल बॉल को जब ऊपर फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड की थी और फाइनल वेलोसिटी 0. और ब्लू बॉल को जब किसी ने ऊपर से फेंका था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते. आवर जॉब इज टू फाइंड वेयर विल दे मीट, मीनिंग the height at which they will meet. H. बट पूरे टावर का हाइट दिया हुआ है 100 मीटर. तो अगर 100 मीटर टावर का एक टुकड़ा h है तो दूसरा 100 माइनस h है. That's the scenario. That they meet somewhere of at height h. तो ऊपर से नीचे आने वाले भाई साहब ने 100 माइनस h डिस्टेंस ट्रैवल किया है और नीचे से ऊपर जाने वाले ने h डिस्टेंस ट्रैवल किया. You have to by heart that for both the scenarios you are going to use the same formula. S is equal to ut plus half at square. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो S मतलब डिस्टेंस 100 माइनस h. तो ये ब्लू बॉल के लिए जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, distance traveled from here till here is 100 minus h. Initial velocity 0, तो ut 0 हो गया, प्लस हाफ g t स्क्वायर. तो 100 माइनस h इज हाफ और 9.8 मतलब 4.9 t स्क्वायर. यहां स्टॉप हो जाए.
अब रेड बॉल की चिंता करो, तो रेड बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट s डिस्टेंस ट्रैवल h है। रेड बॉल यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h। ut इनिशियल वेलोसिटी 25, t प्लस हाफ g माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्यों? बिकॉज हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया है, स्पेशल फॉर्मूला नहीं। स्पेशल फॉर्मूला के अंदर वो माइनस की साइन आ जाती है, बट व्हेन यू यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फॉलिंग डाउन में प्लस 9.8, गोइंग अप में माइनस 9.8, तो h इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। नाउ यू हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो 100 माइनस h प्लस h, लेफ्ट हैंड साइड 100 माइनस h प्लस h, h कट 100, एंड 4.9 टी स्क्वायर और माइनस 4.9 टी स्क्वायर गायब हो जाएगा, बचेगा 25t। देयरफॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। टाइम मिल गया। मेन क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर विल दे मीट। क्वेश्चन क्या गया, ये रहा। कैलकुलेट व्हेन मतलब कौन से टाइम पे, एंड वेयर मतलब कौन सी हाइट पे, विल दे मीट। तो व्हेन का आंसर आ गया, दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो अब सिर्फ इतना कैलकुलेट करना बाकी है कि 4 सेकेंड बाद भाई साहब होंगे किधर। तो यू कैन यूज आइदर द फर्स्ट और द सेकेंड फॉर्मूला। आई विल यूज फर्स्ट वन, 100 माइनस h is 4.9 into t square, मतलब 100 माइनस 49 अपॉन 10 इंटू 16 इज h। क्या किया, माइनस h को सामने भेज दिया, 4.9 4 स्क्वायर को यहां लेके आ गया, और 4.9 बिकेम 49 अपॉन 10 एंड 4 स्क्वायर बिकेम 16। 1000 माइनस 784, मैंने एलसीएम ले लिया। 1000 माइनस 784, 216 upon 10, they will meet at 26.1 meter from the ground। कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, अगर ऊपर से और नीचे से फेंको तो 21.6 मीटर की हाइट पे मिलेंगे, और 4 सेकेंड चले गए होंगे तब तक। वेरी स्पेशल एंड यूनिक सम। तो अगर स्कूल में न्यूमेरिकल्स पूछने वाले हैं तो ये ऐसे ही लिखना एंड बाय हार्ट इट। A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds। एक बॉल जिसको सीधा ऊपर फेंका था वो फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद आता है। तो थ्रोन अप के फॉर्मूलाज लगेंगे, मेक देम रेडी। टाइम टेकन, नाउ दिस इज द टाइम टेकन वेर इट कम्स बैक इन हिज हैंड्स, but we have to write 3 seconds if we are going to consider the throw up scenario। so total time का आधा करना भूलना मत। find the velocity with which it was thrown up, initial velocity। find maximum height which it reached, h।
and find its position after 4 seconds. ऊपर जाने के लिए 3 सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी और हाइट फाइंड करते हैं. u is equal to gt, the first formula I use, and I'm going to take g as 9.8. u is equal to gt, u is equal to 9.8 into 3, u is equal to 29.4 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से बॉल को फेंका गया था. अब हाइट फाइंड करनी है. u स्क्वायर इज 2gh. वही करना पड़ेगा. हाइट इज इक्वल टू, अरे u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. 29.4 square is equal to 2 9.8 h. So h is equal to 29.4 into 29.4 upon 2 into 9.8. 29.4 is 294. 294 2 दोनों का डेसिमल का 10 10 और 98 का ऊपर एक डेसिमल चलेंगे. कैंसलेशन. 98 वन जा, 98 थ्री जा, 10 10. 2 makes this 147. So 147 into 3 upon 10 44.1 meter is the answer. Calculation. Initial velocity 29.4 meter. And now the last question is, what will be the position after 4 seconds? तो 4 सेकेंड बाद वो गिरना शुरू करेगा, क्योंकि जब बॉल को फेंका तो वो ऊपर गया, ऊपर जाके वापस आया. टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड्स. मीन्स यहां तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड अपवर्ड जर्नी, 3 सेकेंड डाउनवर्ड जर्नी. तो 4 सेकेंड बाद बॉल कहां होगा? 4 सेकेंड बाद बॉल पीक पे जाके यहां कहीं पहुंचा होगा, वो गिर रहा होगा. मतलब यू हैव टू यूज द फ्री फॉल फॉर्मूला. और फ्री फॉल फॉर्मूला में टाइम इज 1 सेकेंड. 1 सेकेंड हुई है गिरते हुए. g इज 9.8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट h. तो फ्री फॉल के फॉर्मूलाज में से h is equal to half gt square. h is equal to half gt square. Half gt square मतलब 4.9. आंसर इज इट. अच्छा, 4.9. टोटल हाइट क्या है? 44.1 और 4 सेकेंड बाद वो 4.9 मीटर पहुंचा होगा, बट वो नीचे से, ऊपर से. इट इज फ्रॉम द टॉप. सो दिस इज द ग्राउंड. यहां से बॉल फेंका था, यहां से बॉल ऊपर गया और ये बॉल वापस आया. द टोटल हाइट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट 44.1 मीटर. और इतना कवर करने में 3 सेकेंड लगते. और जब गिरना शुरू करता है
तो एक और सेकंड गिरता है, तो चौथी सेकंड पे वो कहाँ होगा? तो ये जो हाइट है दैट कम्स एज एन आंसर विच इज 4.9 meter. So you have to say the ball will be at 4.9 meter from the top. From the bottom नहीं, from the bottom करना है तो 44.1 minus 4.9 करना पड़ेगा, 39.2 meter from the ground. That's the answer. Volume of a 50 gram substance is 20 cm cube. Volume is 20 centimeter cube. Mass is 50 grams. और density of water 1 ग्राम पर cm क्यूब. तो पहले हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं. वॉल्यूम और मास दिया हुआ है, सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मास अपॉन वॉल्यूम. 50 अपॉन 20, 2.5 ग्राम पर cm क्यूब. क्वेश्चन है विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक. तो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ सीधा कंपैरिजन करो ना. द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. आंसर सिंक. ऑप्शन नंबर 2, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करो. रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. Density of object 2.5, density of water 1. Final answer 2.5. Relative density is more than 1. Sink. Same answer. These are two ways you can do. Just find density, compare with water. Volume of 500 gram seal packet is 350 cm cube. Volume is 350 cm cube. Of what? Of a packet of mass 500 grams. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1? Same. Density of water 1 gram per cm cube. तो पहले डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं. is mass upon volume. 500 upon 350. 0 0 cut, 5 tens are 5 sevens are 1.428. मतलब अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा था 8 को इग्नोर करोगे जो 5 या 5 से ज्यादा है तो 1.43 हो जाएगा ग्राम पर cm क्यूब. 1 से ज्यादा है देयरफॉर इट विल सिंक. सिंपल. बट अब एक मेन क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट. ये थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा. विल द पैकेट फ्लोट और सिंक, तो वो लिख देते हैं. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1.43 is more than density of water 1, therefore sink. अब पूछ रहे हैं कि जब ये पैकेट को पानी में डालोगे तो what will be the mass of the water displaced. पानी का मास क्या होगा जो बाहर निकलेगा अगर ये ऑब्जेक्ट पानी में गया तो. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है 350 cm क्यूब.
350 cm क्यूब वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट जब पानी में जाएगा तो पानी बाहर आएगा, और पानी कितना बाहर आएगा? एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम 350 cm क्यूब. Density is equal to mass upon volume. Density of water 1, mass of water पता नहीं, volume of water 350 cm cube. Therefore, mass of water displaced by the object is 350 grams. तो डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत काम में आता है. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था. पहला क्वेश्चन था फ्लोट और सिंक. वॉल्यूम 350, मास 500 ग्राम्स. पानी में डाल दिया, डूबेगा कि तैरेगा? तो डूब गया क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा निकली. बट जब ये डूबा तो पानी निकला. पानी निकला, उसका मास क्या है? तो पहले वॉल्यूम कंपेयर करो कि डूबने का वॉल्यूम 350 है इसका, तो पानी भी 350 निकलेगा, और वो पानी को डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम में डाल दो, तुमको पानी का मास मिलेगा 350 ग्राम्स. That's the end of this session. So numericals are difficult, but you see it 2 or 3 times, I'm sure you will get it. Thank you so much.